ناظرین، زندگی میں دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ ضرور کرو، مگر جب مقابلہ اپنے استاد یا والدین سے ہو تو ہمیشہ پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ وہاں ہار جانا ہی تمہاری اصل جیت اور مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت اور کامیابی کا راستہ ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنی آنکھوں کی پلکوں پر سرسوں کا تیل ہلکا سا مسل دیں، اس سے نظر کی کمزوری نہیں ہوگی، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ وہ خواتین جن کے چہرے پر وقت سے پہلے جریاں آ جائیں، وہ چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا لیں، کچھ ہی دنوں میں جریاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ بار بار نیند سے اچانک جاگ جانا کسی خفیہ اور جان لیوا بیماری کی ابتدا ہو سکتی ہے، اسی لیے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر چہرے پر ضدی کیل مہاسے اور دانے ہیں تو ان پر خالص شہد لگا کر ہلکا سا جنٹلی مساج کریں۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں کے تلوں پر لگانے سے آپ کے قد میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ نہار منہ سادہ پانی پینے کی عادت انسان کے گردوں کو اندر سے صاف کر دیتی ہے۔ ایک سمجھدار انسان جب خاموشی سے رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی عزت نفس کو کسی نے شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔ کھانے کے بعد صرف ایک چمچ سونف چبانے سے آنکھوں کی روشنی میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ اخروٹ کا باقاعدہ استعمال ہونٹوں کی قدرتی خوبصورتی اور سرخی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اسی طرح پیاز کا عرق یا پانی چھاتی میں جمع بلغم کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جگر کے امراض میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا میں کالے چنوں کا استعمال بڑھا دے۔ وہ لوگ جو کھانسی اور دمے کے مریض ہیں انہیں ناریل کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر پیٹ میں ہر وقت گیس اور بوجھ محسوس ہو تو میتھی کے بیج پانی کے ساتھ لیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے کی عادت معدے میں سوجن اور تذابیت پیدا کرتی ہے۔ کالی مرچ کا استعمال اپنے کھانوں میں لازمی کریں، یہ آپ کو سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی۔ گھٹنوں کے پرانے درد میں انجیر کا استعمال بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کے بال بڑی تیزی سے گر رہے ہیں تو نیم کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے اپنے بالوں کو دھوئیں، بال گرنا فوراً بند ہو جائیں گے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں جلدی جاگنے کی عادت ڈالیں، اس سے آپ کے بدن کی طاقت اور جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائیاں، چینی اور مٹھائیاں اور جو مصنوعی مشروبات ہیں اس کو فوراً نکال دیں اور ان کی ریپلیس کر دیں۔ تازہ پھل، ہری سبزیاں کا استعمال بڑھا دیں۔ اگر سینے میں جکڑن ہو، درد محسوس ہو تو اجوائن کے تیل کی مالش کریں۔ شہد اور انجیر کو ملا کر کھانے سے بدن میں سستی اور کاہلی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر رفع حاجت کے وقت پیٹ میں شدید مروڑ یا درد ہو تو یہ گردوں کی خرابی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ دودھ کو قدرتی طور پر گاڑھا کرنے کے لیے اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دیں، دودھ فوری گاڑھا اور طاقتور ہو جائے گا۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ صبح کے وقت دہی اور شہد ملا کر کھانے سے ضدی موٹاپے سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ آلو کا رس نکال کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 20 منٹ بعد کسی اچھے شیمپو سے دھو لیں، اس سے آپ کے بال چمکدار اور ان کی جڑیں انتہائی مضبوط ہو جائیں گی۔ زیادہ دیر تک تنہائی میں یا نامحرم عورتوں کی قربت میں رہنے سے انسان نفسیاتی اور اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ خواتین جو دوران حمل انار کا کثرت سے استعمال کرتی ہیں ان کی اولاد بہت ذہین اور خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں وہ خالص شہد کا استعمال بڑھا دیں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی جیسی بری عادات کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو جب بھی طلب ہو لیموں چکھ لیا کریں۔ معدے کو ہمیشہ تندرست اور جوان رکھنا ہے تو تلی ہوئی چیزوں سے
परहेज करें। बुने हुए चने और अमरूद का इस्तेमाल मसाने की कमजोरी को जड़ से खत्म कर देता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए रोजाना कच्ची गाजरें खाएं। अगर खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही तो मुलट्ठी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख कर चूसते रहें। याद रखें कि सफेद आटा मैदे के बहुत सारे मसाइल को जन्म देता है और आंतों के कैंसर का बायस बन सकता है। बदन में नई तवानाई भरने के लिए सुबह सवेरे घास पर नंगे पांव टहलने की आदत डालें। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल हैरत अंगेज तौर पर लंबे होते हैं और घने होते हैं। काले अंगूरों का इस्तेमाल रंगत को गोरा और साफ रखता है। अंगूर न सिर्फ मैदे के अमराज के लिए बेहतरीन है बल्कि ये इंसानी दिमाग को भी जला बख्शते हैं। मॉडर्न और जदीद तहकीक के मुताबिक ठंडे कमरे में सोने से वजन कम करने में मदद मिलती है। केला कमजोर हड्डियों को ताकत देता है और जिस्म का दुबलापन खत्म कर देता है। मछली का खारिज तेल नाक में डालने से पेट की चर्बी बहुत जल्द पिघल जाती है। करेले का कड़वा पानी अगर चेहरे पर लगा दें तो दाग धब्बे नहीं उभरते। जैतून का तेल नाक में लगाने से न सिर्फ चर्बी कम होगी बल्कि शुगर भी कंट्रोल रहती है। बूढ़े अफराद जिनकी नजर कमजोर हो उन्हें नहार मुंह गर्म दूध के साथ सौंफ खिलानी चाहिए। इससे बुढ़ापे में भी नजर उनकी अकाब की तरह तेज हो जाएगी। दिल इंसानी जिस्म का वो नाजुक हिस्सा है जो मुसलसल गुनाह करने से अपनी फितरी हालत खो देता है। ज्यादा हंसना और मजाक करना इंसान के दिल को रूहानी तौर पर मुर्दा कर देता है। खाने के फौरन बाद सो जाने से दिल की शरियानें सख्त हो जाती हैं। मछली का इस्तेमाल खून में रवानगी पैदा करता है। अगर आप रोजाना अनार का 1 गिलास ताजा जूस पिए तो आपकी जिल्द हमेशा जवान और शदाब रहेगी। हमेशा याद रखें कि जरूरत से ज्यादा मेहनत आपकी कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाती बल्कि आपके आसाब को थका देती है। इसलिए अपनी जात को भी वक्त दिया करें ताकि दिमाग ताजा दम रहे। बालों पर केमिकल वाली ब्लीच का इस्तेमाल बालों की तबाही का सबब बनता है। अगर पौधों के गमलों में कभी कभार ठंडी चाय छिड़क दी जाए तो मिट्टी में कीड़े पैदा नहीं होते। खवातीन की खूबसूरती में मोटापा सबसे बड़ी रुकावट है। इससे बचने के लिए खीरा और शिमला मिर्च अपनी गुज़ा का मुस्तकिल हिस्सा बना ले। जौ का पानी पीने से जिस्म में नमकियात की मतवाजन मकदार बरकरार रहती है। गुस्ल के फौरन बाद कानों के पीछे जैतून का तेल लगाने से आपकी दिमागी कमजोरियों का खात्मा होता है। घर में पुदीने का पौधा लगाना सांस की बीमारियों से बचाता है। रात को सोते वक्त 3 बादाम चबाकर खाने से चेहरे की जिल्द में कुदरती चमक पैदा होती है। नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक जो खवातीन बात बात पर टेंशन नहीं लेती वो तवील अरसे तक बूढ़ा या बूढ़ी नहीं होती। टांगों और पिड़लियों के दर्द के लिए नीम गर्म पानी से गुस्ल करना बेहतरीन इलाज है। नमक का ज्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को खतरनाक हद तक बढ़ा देता है। ज्यादा चाय पीने से दांतों के एनिमल्स खराब हो जाते हैं और वो कमजोर हो जाते हैं। भिंडी को तेल में पकाकर खाना आंतों की सोजिश के लिए मुफीद है। छुआरे की गुठली जलाकर गैर जरूरी बालों पर लगाने से इनका खात्मा हो जाता है। शहद को अपनी रोजाना की ग़िज़ा में शामिल कर लें ताकि जिगर की बीमारियों से आप महफूज रह सके। बंद गोभी का सालन बवासीर के मरीजों के लिए कुदरत का खास तोहफा है। भेड़ का दूध पीने से जिस्म की जो फालतू चर्बी है वो पिघलती है और वो लोग जो सोते वक्त अपना मुंह खुला रखते हैं उनके चेहरे पर झर्रियां बहुत जल्द नमूदार होती हैं। शुगर के मरीजों के लिए एक सुनहरी नुस्खा ये है कि वो पेशाब करने से पहले 1 गिलास सादा पानी पीने की आदत डालें।
इससे शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। अंगूर का ताजा शरबत पीना मर्दाना कुव्वत में अजाफे का बायस बनता है। नहारमू गुड़ वाले पानी में काला नमक डालकर पीने से सारा दिन मैदा आपका हल्का फुल्का रहता है और आधे सर का दर्द नहीं होता। डेंगू बुखार में सब्ज इलायची के दाने मुंह में रखना व्हाइट सेल्स को तेजी से बढ़ाता है, बस इन्हें चबाना नहीं है। पालक का ज्यादा इस्तेमाल खून की खराबी को दूर करता है, मगर इससे गुस्सा ज्यादा आता है। जामुन का हाथ से ज्यादा इस्तेमाल फेफड़ों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। प्याज का रस और बड़ी इलायची के दाने भून कर खाना सांस की तकलीफ को खत्म करता है। ये एक कदीम और आजमुदा इलाज है। सब्ज इलायची पोटाशियम और कैल्शियम का खजाना जो ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। फ्रूट चाट पर नींबू निचोड़ने से इसकी अफादियत बढ़ जाती है। रात को आंखों में सुरमा डालना सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इससे आपकी बसारत तेज होती है। फालजदा हिस्से पर कद्दू का पानी मलने से असाब में जिंदगी दौड़ने लगती है। जो लोग सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखते हैं वो कई किस्म के मर्दाना बीमारियों से महफूज रहते हैं। मेथी दाना भिगोकर इसका पानी पीना वजन घटाने का सबसे आसान और कुदरती तरीका है। दिल की धड़कन अगर अचानक तेज हो जाए तो प्याज और शहद मिलाकर खा लें। अगर दिल कमजोर महसूस हो तो रात को अर्के गुलाम में किशमिश भिगोकर खुले आसमान तले रखें और सुबह नहार मुंह वो किशमिश खाकर अर्क पी लें। ये दिल को नई जिंदगी देता है। जिंदगी में अच्छा वक्त आने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी आंख फजर के वक्त अल्लाह खुद ब खुद खोल देता है और आपको दीन की बातें समझ आने लगती है। दांतों को मोतियों जैसा सफेद करने के लिए नींबू के छिलके रगड़ें। पुरानी से पुरानी खांसी से निजात के लिए अनार के छिलके का छोटा सा टुकड़ा चबा लें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खुशबख्ती की 3 अलामतें हैं। नंबर 1 नेक बीवी, फरमाबरदार सवारी और कुशादा घर। सफर से वापसी पर पैरों को गर्म पानी में भिगोने से सारी थकावट उतर जाती है। आबे ज़मज़म हमेशा खड़े होकर और किबला रुख करके पीना चाहिए। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना और खाना इंसान को कैंसर जैसे खतरनाक और मूजी मर्ज से